Okay, students. So yesterday, in last lecture, we have covered the partial fraction method to solve the Laplace inverse Laplace transform. Okay, so in first lecture, we have to discuss. We have discussed in about the formula of Laplace transform as well method of Laplace transform. So how many methods? There are four methods. Once again, recall all this thing, and then we will start the next method. Okay, so first of all, uh, tell me the all formula of inverse Laplace transform. So that is L inverse of that is 1 upon s square plus a square. Just tell me what is the formula of this one. So that will be sine 80 upon a. Okay, and L inverse of what s upon s square plus a square. So that will be cos 80. And similarly, L inverse of 1 upon s square minus a square. Answer is sine hyperbolic 80 upon a. Clear? And L inverse of s upon s square minus a square. Answer is cos hyperbolic 80. Next formula L inverse of 1 upon s minus a. Answer is e to the power 80. And L inverse of 1 upon s plus a. What is answer? That is e raised to minus 80. L inverse of 1 upon s. This is 1. And L inverse of 1 upon s raised to n. So that is t raised to n minus 1 divided by n minus 1 factorial or t raised to n minus 1 divided by gamma n. L inverse of 1 upon s plus a whole raised to n. Then what is answer? T raised to n minus 1 e raised to 80 divided by n minus 1 factorial. And last formula is and L inverse of 1 upon s minus a the whole power n. This is equal to t raised to n minus 1 divided by n minus 1 factorial into e raised to 80. So these are the formulae of inverse Laplace transform. ऑलरेडी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है. Okay, next method. Methods of solving inverse Laplace transform. So first method is shifting property, right? So in this property, if L inverse of any function given like s minus a, then you have to write e to the power 80 and L inverse of phi of s. And replace every s minus a equal to s and multiply by e to the power minus plus 80 outside of the Laplace. Finally, s plus a. So then answer will be to the power minus 80 L inverse of phi of s. So this is your first method already covered in first lecture of Laplace inverse Laplace transform. Now second method is partial fraction method, right? Already covered in the last lecture. And third method is convolution, right? Next method is differentiation property. So today we will start from convolution. Okay, already I have given some rough idea about that. So am I audible properly now? Sir. Okay. So now convolution method. So let f phi 1 of s into phi 2 of s. There are two functions. You can also say that is a product rule. Exactly, this is not a product rule, but you can say because there are two multiplication of two function f1 of phi 1 of s and phi 2 of s and find the inverse Laplace of this. So first of all, you have to find f1 of t. So f1 of t is nothing but L inverse of first function. फर्स्ट फंक्शन का L इनवर्स निकालेंगे, सेकेंड फंक्शन का हम लोग L इनवर्स निकालेंगे. So that is called as the f2.
यानी phi 2 का एलिमेंट कैलकुलेट किया, so that will be called as a f2. After that, substitute t equal to u, substitute t equal to u and t equal to t minus u in f1 of t and f2 of t, right? You can interchange also. Suppose that if you want to put t equal to t minus u in the first function, then you can. So as per your choice, out of two function में से f1 आपने f1 में पुट किया तो भी चलेगा. तो हमने f1 वाले में जहाँ t था उसकी जगह t की जगह u लिख देंगे, तो हमें फिर f1 of u मिल जाएगा. और सेकेंड फंक्शन में जो f2 of t लिखा है, इसमें t की जगह हम लोग t माइनस u पुट कर देंगे, तो आपको f2 of t माइनस u मिल जाएगा. सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं phi 1 of s into, this is the product of two function, so finally you can write 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du, or 0 to t f2 f1 of t minus u into f2 of u, just like. So both are valid. तो होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रहा है. Is it clear? So now solve some example based on this. Now this is the first example. L inverse of s upon s square plus a square into s upon s square plus b square. Right? This question you can also solve by using partial fraction method. Okay? Partial fraction method से भी solve कर सकते हैं. तो हम लोग पहले इसमें कन्वोल्यूशन अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करेंगे एंड देन इस क्वेश्चन को हम लोग पार्शियल से भी सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको पार्शियल का भी रिवीजन भी हो जाएगा एंड क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी बेस्ट रहेगा. यहाँ पे कुछ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ. सपोज दैट यहाँ पे मैंने 4 ले लिया. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ. ए और बी में भी आ सकता है, बट सो phi 1 ऑफ s क्या है? फर्स्ट फंक्शन phi 1 ऑफ s phi 1 of s is nothing but s upon s square plus 4, and phi 2 of s second function is the s upon s square plus 9. Now find the f1 of t. The f1 of t is nothing but L inverse of phi 1 of s. Okay. So according to this, that is the phi 1 of s is nothing but s upon s square plus 4. Yes. So you can you tell me what is the formula of this one? cos 2t. Yes, cos of 2t. Now find the f2 of t. So that is L inverse of phi 2 of s. This is equal to, what is the value of phi 2? That is s upon s square plus 9. This is nothing but cos of 3t. Okay, after that find the f1 of u. So how to find the f1 of u? Replace in f1 of t के अंदर, f1 of t के अंदर f1 of t में t की जगह हम लोग u सब्स्टिट्यूट करें. What is value of f1 of t? So that is cos of 2t, और उसमें t की जगह u पुट करेंगे. So finally this will be cos of 2u. Now f2 of t minus u, that means f2 of t minus t के अंदर जहाँ t है उधर t minus u लिखना है. What is value of f2 of t? So that is cos of 3t, और इसमें जहाँ t है उसकी जगह t minus u लिखेंगे. So finally cos of 3t minus u, you can simplify this, so that will be 3t minus 3u. Understood?
यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. Okay, very good. So now apply convolution. So that is nothing but L inverse of phi 1 of S, phi 2 of S can be written as 0 to t f1 of u n2 f2 of t minus u du. So phi 1 of S is nothing but S upon S square plus 4, S upon of S square plus 9 equal to 0 to t. What is the value of f1 of u? That is cos of 2u into cos of 3t minus du du. मैंने काफी प्रॉपर वे में सब कुछ लिख के दिया है. अब इसको इंटीग्रेट करना है. सो हाउ टू इंटीग्रेट, बट उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला लगेगा. आई मीन cos ऑफ a into cos of b is nothing but 1 by 2 cos of a plus b plus cos of a minus. So according to this formula, you can write 0 to t 1 by 2 cos of 2u plus 3t minus 3u, that is cos of a plus b, and plus cos of 2u minus 3t minus 3u. This is a and this is b, like that, du. So in next step you can write 1 by 2 is a constant, so you can take outside of this integration and simplify this expression, that is cos of 3t minus u plus cos of 5u minus 3t. Is it clear? Any doubt? Students, any doubt? No, sir. No, sir. Okay, so in next step you can write 0 to t, I mean integrate this function. So what is the integration of cos? That is sine of 3t minus u divide by coefficient of u, that is minus 1, because हम लोग u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं. And once again that is sine of 5u minus 3t divided by coefficient of u, that is 5. Now limit is 0 to t. So in next step you can write 1 by 2. Now substitute the upper limit. So first of all, u equal, put u equal to t. So that will be sine of t on minus 1. Sine of, here you can put u equal to t. So 5t minus 3t, that will be 2t divided by 5. This is your value of upper limit. Now find the value of lower limit. I mean put u equal to 0 and u equal to 0. So then we will get sine 3 divided by minus 1 and sine of minus 3t divided by 5. In next step you can write, I mean simplify the expression. So 1 by 2, here sine 2t is a common from both the bracket, both the expression. So minus 1 plus 1 by, and here also you can common sine 3t, then minus 1 plus 1 by 5, not minus 1 by 5, here minus आएगा due to this minus 3t, because sine of minus 3t is nothing but माइनस साइन 3t. तो ये माइनस यहाँ पे बाहर आके इस प्लस को माइनस बना देगा, वही माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है. अब नाउ सिंप्लीफाई द बोथ एक्सप्रेशन, सो दैट विल बी, ये कितना आएगा सॉल्व करके? सो दैट इज minus 4 by 5 sin 2t, and here minus 6 by 5, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो दैट शुड प्लस. So now you can common the 5 and multiply by 1 by 2 in the bracket. So 1 upon 5 और 2 को अंदर भेजा तो ये 2 से 4 कट के minus 2 sin 2t plus 3 sin 80. So this is your answer. होप सो कि समझा रहेगा. इसी क्वेश्चन को पार्सल से भी सॉल्व करते हैं.
सो दैट आपका पार्शियल भी रिवीजन हो जाएगा और आंसर करेक्ट है कि नहीं वो भी पता चलेगा. So L inverse of s upon s square plus 4 into s upon s square plus 9. Once again you can write that is s square upon s square plus 4 into s square plus 2. Now apply the partial rule number 3.2. जब न्यूमरेटर में s का पावर इवन रहता है. So you can directly write a upon s square plus 4 and plus b upon s square plus 9. Find the value of a and b later on. Before this, find L inverse of 1 upon s square plus 4 and b into L inverse of 1 upon s square plus 9. So finally we will get sin 2t by 2 and t by 3 sin 3t by 3 का 3 लिख दिया मैंने already. So this is your answer, but find the value of a and b also. So a equal to, you can write a equal to, yes, can you be able to tell me what is the expression of a? Students, what is the expression of a? यहाँ से कंसर्न रखना है आपको. a का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? S S square upon S square plus 9. Very good. S square is equal to S minus 4. square upon s square plus 9 and put s square equal to minus 4. Similarly, b is nothing but s square upon s square plus 4 and put s square equal to minus 9. So that is minus 4 plus 9. So that will be minus 4 upon 5. And here minus 9 upon minus 9 plus 4. So that will be minus 9 upon minus 5. So finally we will get 9 by 5. Is it clear? Any doubt? No, sir. Okay. So now substitute these values in this final answer. I mean from here, just wait. Okay, from here. So what is your final answer? A is nothing but minus 4 by 5. So 4 by 5 already divided by 2 है. That is sin 2t. And 9 by 5 already divided by 3 है. That is sin 3t. So finally minus 2 by 5 sin 2t plus 3 upon 5 because 9 और 3 cancel हो गया but ऊपर एक 3 बचेगा sin 3t. So you can common minus 1 by 5, then you will get final answer is minus 2 sin 2t plus 3 sin 3t. So you can see that the answer of both the method are same. Yes, here this is the final answer from by using convolution. 1 by 5 minus 2 sin 2t plus 3 sin 3t. And here same answer by using partial fraction method. So method का नाम अगर mention नहीं किया है, then you can use either partial or convolution as per your choice. But suppose that mention किया है कि solve by using convolution, then you have to use the convolution formula. So partial का भी revision and as well convolution का एक sum भी हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. लास्ट लेक्चर में मैंने एक सम लिया था पार्शियल वाला और मैंने आपको बोला था कि अगर पावर बहुत ज्यादा बड़े हों, जैसे इसका पावर 4 है, तो इसको पार्शियल अगर अप्लाई करने जाओगे तो इसमें टोटल कितने फैक्टर बनेंगे? इस एबीसीडी कहाँ तक जाएगा? ये पावर 4 के लिए ऑलरेडी 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा. अगर इसका पार्शियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक रफली मुझे बताओ. a upon s minus 3, b upon s minus 3 the whole square, c upon s minus 3 the whole cube, and d upon s minus 3 the whole raised to 4 plus e upon s minus 2. So there are 5 constants a, b, c, d. 5 constants solve करना is the so difficult task. So अगर ये क्वेश्चन में मेंशन मेथड नहीं किया है, तो मेथड अगर मेंशन नहीं किया है तो फिर भी आप इसमें पार्ट कन्वोल्यूशन ही यूज करेंगे क्योंकि पार्शियल यूज करने जाएंगे तो बहुत ही एफर्ट लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एबीसीडी निकालना भी आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा. देखो डी और ई तो डायरेक्टली मिल जाएगा बट बी सी ई के लिए आपको इसके लिए 2 बार, इसके लिए 1 बार, इसके लिए
इसके लिए एक बार, इसके लिए 2 बार, इसके लिए 3 बार डिफरेंशिएट करने पड़ जाएंगे। सी के लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसके लिए 2 बार डिफरेंशिएट और इसके लिए 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी होगा। सो इन बेटर वे कि आप इसमें डायरेक्टली कन्वोल्यूशन यूज करो। सो पहले आप मुझे बताओ phi1 क्या है? किसी एक को phi1 बोलना है, किसी एक को phi2 बोलना है। सो 1/s-3 इसको मैंने phi1 ले लिया एंड 1/s-2 इसको हमने phi2 ले लिया। यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, नाउ फाइंड द फर्स्ट वाले का इनवर्स लैप्लास। इसका इनवर्स बताओ phi1 वाले का। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला e raised to 3t and t raised to 4 minus 1 divided by 4 minus 1 factorial. And second one से बताओ, that is f2 of t, this is equal to e raised to 2t. इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स निकाला तो यहाँ पे लिखा और इसका इधर सामने लिखा ऑलरेडी। इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, चाहिए तो आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, राइट? ये फॉर्मूला यूज करके मैंने वहां पे क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, तो अभी f1 f2 दोनों मिल गया। और फिर मैंने आपको जैसे बताया कि किसी एक में u पुट करना है और किसी एक में t माइनस u पुट करना है। तो किसमें u पुट करना है और किसमें t माइनस u पुट करना है, इसका भी डिसीजन हम लोग को प्रॉपरली लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप देख रहे हो कि दोनों का इंटीग्रेट करना है मल्टीप्लाई के बाद। तो यहाँ पे पहले वाले में u पुट करेंगे तो दैट इज बेटर, e raised to 3u u क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टर। मतलब इसमें t माइनस u पुट करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कर सकते हो बट नहीं करना है बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड। और दूसरे में t माइनस यू पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में t माइनस यू, यहाँ से ये मिला और यहाँ से ये मिला। इसमें t की जगह u पुट किया है, इसमें t की जगह t माइनस यू पुट किया है। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाद में ही कर लेते हैं। नाउ अप्लाई कन्वोल्यूशन मेथड। So what is the formula? Phi1 of s into phi2 of s can be written as 0 to t. Yes, tell me. f1 of u into f2 of t minus ut. So after that, substitute the value of f1 and f2. f1 of u already यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख रहा है, so that is e raised to 3u u cube divided by 3 factorial into f2 of t minus यहाँ पे लिखा हुआ है, that is e raised to 2t minus। ये ब्रैकेट को ओपन करके जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, बिकॉज हम लोग u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो e raised to 3u u raised to 3 divided by 3 factorial, इसको लिख सकते हैं e raised to 2t and e raised to minus 2u। फिर ये और ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा फाइनली e raised to u। और हम लोग u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, उसको हम लोग आउटसाइड ले सकते हैं। सो दैट इज e raised to 2t divided by 3 factorial is nothing but 6। 0 to t 3 factorial is nothing but 6। So finally u cube e to the power u। Now apply u into v rule। According to u into v rule, this function treated as a u and this function treated as v। So u v ऐसे चलते जाते हैं और कभी ना कभी u का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट? तो देखते हैं कहाँ 0 होता है। मैंने ऐसे बस 4-5 बॉक्स बना के लिख दिया। u q लिखना है पहली बार, इसका डेरिवेटिव लिखते जाना है 6u and 6। इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 6 के बाद इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 6? 0 0 आगे जाने के लिए चलते जाएंगे, 0 के पहले रुक जाना है, इसको इधर ही स्टॉप कर देंगे। अब v वाले पे कंसंट्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करते जाओ। तो e raised to u का इंटीग्रेशन तो e raised to u ही होता है, चाहे एक बार करो चाहे कितनी बार भी करो। तो इसलिए हर बार e raised to u ही लिख रहा हूं मैं, बट बेसिकली इंटीग्रेट करके लिखा है। ये फंक्शन v को इंटीग्रेट किया, यहाँ भी इंटीग्रेट किया फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकेंड टाइम,
यहाँ थर्ड टाइम, यहाँ फोर्थ टाइम इंटीग्रेट किया, बट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज ई रेस टू यू का इंटीग्रेशन ई रेस टू यू होता है. E raised to 2t by 6. Now substitute the limit. I mean replace u equal to t. So that is t cube e raised to t, 3t square e raised to t, 6t e raised to t, 6 e raised to t. This is the value of upper limit. Now find the lower limit. Put u equal to 0. So here you can put u equal to 0. Then this term will vanish. I mean 0. So finally सब तक 0 हो जाएगा, सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा -6 e raised to 0. उसके पहले सब वैनिश हो जाएगा due to 0. So finally e to the power 2t divided by 6 e raised to t चाहिए तो यहाँ पे कॉमन लेके लिखो, तो यहाँ t क्यूब -3t स्क्वायर प्लस 6t -6 माइनस माइनस प्लस 6. ये 6 इस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 6 इसके बाजू में e raised to t का मल्टीप्लिकेशन है. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस आंसर ऑल्सो यू कैन राइट लाइक दिस. आप e raised to 2t को अंदर भेज के लिख सकते हो, तो 1/6 e raised to 3t और बाकी के सारे टर्म्स एंड प्लस 6 e raised to, ऐसे भी आप लिख सकते हो. सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा. समझा क्या प्रॉपरली Yes, sir. स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. So let's see one more example. Question number 3. L inverse of like this s square upon s square plus a square the whole square. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगल फंक्शन जैसा है, बट इसको हम लोग तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं. कैसे? L inverse of s upon s square plus a square into s upon s square plus a. इस क्वेश्चन में हम लोग पार्शियल यूज नहीं कर सकते क्योंकि पार्शियल के लिए डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट होना ही चाहिए. यहाँ डिनोमिनेटर में एक ही ब्रैकेट है, 2 डिफरेंट ब्रैकेट होना चाहिए. क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 ब्रैकेट आपने बनाया डिनोमिनेटर में, तो दोनों सेम फैक्टर है. इसमें भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी एस स्क्वायर प्लस ए. पार्शियल तभी यूज कर सकते हो दोनों डिफरेंट. अगर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन में पार्शियल अप्लाई नहीं होगा. और ये क्वेश्चन कंपलसरी आपको कॉन्वोल्यूशन से ही करना पड़ेगा. तो चलो देखते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको पहली बार एकदम डिटेल में लिख के दिया, दूसरी बार थोड़ा शॉर्टकट किया, इस बार और शॉर्टकट करते हैं. ये फंक्शन का एल इनवर्स बताओ, डायरेक्टली एल इनवर्स बताओ. सो दैट इज cos 2t. इसका भी एल इनवर्स लोगे तो क्या आएगा? cos 2t. सॉरी नॉट 2t, माय मिस्टेक, दैट इज cos 80. इज इट क्लियर? फिर जैसे कि मैंने बताया किसी एक में u पुट करना है, तो इसको हम लिख देंगे cos au, और किसी एक में t माइनस u पुट करना, और दोनों को इधर ही मल्टीप्लाई करके सेम स्टेप्स कंटिन्यू कर सकते हैं. 0 to t में इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर ले. तो ये एक थोड़ा और शॉर्टकट हो गया तरीका लिखने का. अदरवाइज आप डिटेल में भी जा सकते हो. phi 1 of s कैन बी रिटन एज s upon s square plus a square, and phi 2 of s is nothing but s upon s square plus a square. Now find the f1 of t. This is equal to इसका inverse function, that is cos 80. फिर f2 of t is nothing but इसका inverse function, that is once again cos 80. बाद में किसी एक में fu पुट करेंगे, f1 of u is nothing but cos of au, and f2 of t minus u is nothing but cos of a into t minus, right? So ये सब भी आप दिखा सकते हो लास्ट में, बट रेड थोड़ा शॉर्टकट किया. अब इसको इंटीग्रेट करना, दैट इज योर टारगेट. एक लाइन और इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ. 0 to t cos of au into cos of 80 minus au du. Okay, so after that once again apply same formula, cos a cos b, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था. So that is 1/2 cos of a plus b and plus cos of a minus b. This term we have as a और इसको हम लोग एज अ b ट्रीट करेंगे. So according to this formula 1/2 0 to t, बोलो cos of what? a और b को ऐड करके डायरेक्टली बता सकते क्या आएगा?
ए और बी का एक्सप्रेशन आपको मैंने बताया, दोनों को ऐड करके यहाँ बोल सकते हो इधर क्या लिखूं, और यहाँ सब्ट्रैक्ट 80 करके बोल सकते हो कि क्या लिखना है। यस स्टूडेंट्स, 80. A and B. What is the value of A? A is nothing but AU, or B is nothing but 80 minus AU. Okay. Once again, tell me what is the value of A plus B? 80. 80. And what is the value of A minus B? 80 plus 2. 80 plus 2. 80 plus 2. 2A minus 80. ये परफेक्ट लिखा है या फिर कुछ करेक्शन है इसमें? -80 आएगा, -80. हाँ माइनस 80. ए का वैल्यू है AU, B का वैल्यू है 80 माइनस AU. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस B मिलेगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होके AU प्लस AU 2AU माइनस 80, वही लिखा है यहाँ. सो अभी इंटीग्रेट करते हैं, U के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. सो U के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है cos 80, इसके अंदर कहीं भी U नहीं है, तो पहली बार इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं. फिर इंटीग्रेशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा. दूसरे इंटीग्रेशन पे आते हैं, मैंने इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके लिखा, इसको बाहर नहीं ले सकते बिकॉज इसके अंदर U है, तो ये इंटीग्रेट होगा. अब दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1/2, यहाँ cos 80 हमने कांस्टेंट पकड़ के बाहर लिया है, 1 का इंटीग्रेशन U होगा, लिमिट 0 to t पुट करेंगे. यहाँ cos का इंटीग्रेशन साइन होगा बिकॉज यहाँ पे cos के अंदर U का टर्म है, so that is 2AU minus 80 the whole divided by 2A because divided by coefficient of U, and इसका भी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to, तो मैंने दोनों स्प्लिट करके इंटीग्रेट किया इस बार बिकॉज उसमें cos 80 कांस्टेंट था. इसको सॉल्व करेंगे तो cos 80 और इसमें अपर लिमिट t माइनस 0, अपर एंड लोअर दोनों. इसमें अपर लिमिट क्या आएगा बताओ, आई मीन U की जगह t पुट करके डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके बताओ, साइन ऑफ व्हाट? 80. टेल मी. सब्स्टिट्यूट U इक्वल टू 80. 80. एक मिनट, कुछ स्टूडेंट वेटिंग रूम में. So let's continue this question. So tell me, after substituting U equal to t, then we will get, yes is done, what is the value of sine of what? 80. 80, because 2 substitute U equal to t, therefore 280 minus 80, so finally we will get 80 minus, now substitute U equal to 0, that is lower limit, then sine of minus 80. So upper and lower का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन फाइनल आंसर आ जाएगा. So 1/2 t cos 80 प्लस, ये माइनस बाहर निकल के इस माइनस को प्लस करेगा तो 280 हो जाएगा, 2 sin 80, 2 times of sin 80 divided by 2a. Once again 2 and 2 cancel, finally we will get t cos 80 plus sin 80 by. Understood? Any doubt? So स्टूडेंट होप तो आपको ये समझ में आ रहा होगा. कन्वोल्यूशन में आप लोगों को कॉन्फिडेंट हो गए कैसे करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा मुझे हेल्प करेंगे तो बेटर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, s square plus 2s plus 1 divided by s square plus 2s plus 5 and s square plus 2s plus 10. So first of all make up of factor square. तो जैसा कि मैंने बताया था कि s square plus as लिखा है, सो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं s plus a by 2 the whole square minus a by 2. ये कंसेप्ट आप इसमें यूज करो, इसके लिए एज वेल एज इसके लिए एज वेल एज इसके लिए. सो टेल मी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? ये जो मैंने सर्कल बनाया ऊपर, तो उसके बारे में सोचो. तो s प्लस हाफ 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर.
+1 अपने जगह पे, जो मैंने सर्कल किया है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ, और उसके बाजू का जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा। ये भी होगा s+1 द होल स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड +5। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आते हैं। सो दैट इज s+1 अगेन होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर +10। सो इस तरीके से मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में शिफ्टिंग करना है, अप्लाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो दैट इज रिप्लेस एवरी s+1 की जगह पे s लिखना, और आउटसाइड में e टू द पावर -t लिख दिया। तो e रेज टू -t L इनवर्स ऑफ, बोलो, s का स्क्वायर और 1 और कैंसिल हो गया, s स्क्वायर +4 हो जाएगा बिकॉज 5 और 1 सब ऐड करके इतना आएगा, और ये हो गया s स्क्वायर +10, 10 नहीं 9 हो गया। यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? ये जिधर इधर s प्लस, ये जो s+1 था उसकी जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में s लिखना है। अंडरस्टूड? So after that, this is your question. Now apply either convolution or partial as per your choice. So already ये सम हम लोगों ने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, ये सेम सम हम लोगों ने सॉल्व किया, राइट? e raised to -t, इसको मैं लिख देता हूँ, रेफर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन का पहला ही क्वेश्चन है जो अभी भी सॉल्व किया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है वो देखते हैं। अब भी सॉल्व किया, पहला क्वेश्चन है। यस, सो दिस इज योर यही क्वेश्चन जिसका हमने पार्शियल से भी सॉल्व करके रखा है और कन्वर्शन से भी रखा है। तो ये आंसर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उसमें बस एक शिफ्टिंग अप्लाई किया, और उसके बाद जैसे शिफ्टिंग अप्लाई करोगे क्वेश्चन ऐसा बन गया। शिफ्टिंग के बाद ये क्वेश्चन ऐसा बन गया जैसे कि आप देख रहे हो। शिफ्ट आफ्टर शिफ्टिंग अप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन बन गया, और इसका पूरा कन्वोल्यूशन से ये पूरा प्रोसेस वहां पे नोट डाउन कर लेंगे, बट अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने ऑलरेडी किया है। तो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। तो आपका आंसर क्या आया था? दैट इज 1/5 माइनस 2 sin 2t and +3 sin. So 1/5 minus 2 sin 2t +3 sin 3t, ये आंसर है। तो हमने इसको डायरेक्टली वहां से रेफर करके लिख दिया। सो होप सो कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। कहीं किसी को डाउट है? स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? वापस चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि करेक्शन क्या है। सो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन है s+4 की जगह s स्क्वायर अपॉन s⁴ प्लस s स्क्वायर प्लस 16। डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट किया, तो फाइनली s स्क्वायर + 4 द होल स्क्वायर बन गया। और फिर बाद में उन दोनों को स्प्लिट करके हम लोगों ने इंडिविजुअली इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट किया। पहले वाले का cos 2t है, दूसरे का भी cos 2t है। फिर एज पर कन्वोल्यूशन मेथड किसी एक में u और किसी एक में t माइनस u पुट करना था, तो वो भी हमने कर दिया, और फिर बाद में इंटीग्रेट कर दिया 0 to t में अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कन्वोल्यूशन। आफ्टर दैट हाउ टू इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग यहाँ पे cos a cos b का फॉर्मूला यूज किए। सो अकॉर्डिंग टू cos a cos b यू कैन राइट cos of a plus b and cos of a minus b, और आउटसाइड में 1/2। तो इसके लिए यहाँ 1/2 आ गया, एंड
cos 2t को इंटीग्रेट करना है u के रिस्पेक्ट में, तो u के रिस्पेक्ट में cos 2t कांस्टेंट आउटसाइड लिख दिया और बचा वहाँ 1, तो 1 का u इंटीग्रेशन हो गया। तो ये इस स्टेप पे हम लोग बात कर रहे हैं। एंड cos ऑफ 4u माइनस 2t का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4u माइनस 2t डिवाइड बाई 4। फिर अपर एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो इसके अंदर ही t माइनस u बन गया। यहाँ पे t की 4 की जगह हमने t पुट किया तो 4t माइनस 2t दैट इज 2t एंड 0 पुट किया तो माइनस 2t। ये अंदर का माइनस इस माइनस को प्लस बनाएगा, तो अगले स्टेप में प्लस होने की वजह से sin 2t दो बार आ गया तो 2 sin 2t बाई 4 लिख दिया। फिर 2 से 4 कट जाएगा और फाइनली यहाँ पे एक आंसर मिल जाएगा दैट इज 1/2 t cos 2t प्लस साइन ऑफ 2t बाई नॉट 4 दैट इज 2। सो ये है वो स्मॉल करेक्शन जो मैंने बताया। चलेगा, अब इसी से रिलेटेड एक और सम सॉल्व करते हैं कन्वोल्यूशन से रिलेटेड ही, दैट इज L इनवर्स ऑफ s प्लस 4 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई s स्क्वायर 8s प्लस 16। So again make a perfect square, so you will get yes s plus 4 the whole square minus 4 का स्क्वायर प्लस 16। इसमें हम लोग शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। So in that situation after applying the shifting property replace every s plus 4 equal to s। ये जो s plus 4 है उसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, s लिखने वाले हैं और आउटसाइड में e टू द पावर माइनस 4t L इनवर्स ऑफ s का स्क्वायर, नीचे भी s स्क्वायर नहीं थोड़ा सा करेक्शन है, क्वेश्चन में एक स्मॉल करेक्शन है क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो स्मॉल करेक्शन इज व्हाट, सो this 16 this is not a 16, that is 32. Okay, so that is 32. That is 32. This is also 32 और ये 2 जो लिखा है वो तो कंटिन्यू रखना ही अपने को। फिर हम लोग शिफ्टिंग किया, ऊपर s स्क्वायर हो गया, नीचे ये 16 तो 16 बच गया और ये होल स्क्वायर अपने जगह पे। फिर आप अगले स्टेप में इसको लिख दोगे e raised to minus 4t L inverse of s upon s square plus 16 into s upon s square plus 16. So after that you can write, now directly आप इनवर्स लगाओ इधर, तो इसका इनवर्स लिखोगे तो क्या आएगा, दैट इज cos ऑफ 4t, इसका भी cos ऑफ 4t, इसमें u पुट करोगे तो cos ऑफ 4u और इसके अंदर t माइनस u पुट करोगे तो cos ऑफ 4t माइनस 4u और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे जगह पे 0 टू t में। एक टर्म बाहर है माइनस 4t को कंटिन्यू रखें, ये वाला टर्म जो शिफ्टिंग की वजह से। तो फाइनली e रेज टू माइनस 4t, इसको इंटीग्रेट करते हैं cos a cos b के फॉर्मूले से। पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 4t एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8u माइनस 4t, राइट। ये सम थर्ड टाइम हो गया, सिर्फ नंबर्स बदलते जा रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे तो u आएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ये पूरा टर्म और cos 4t एज इट इज होगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ऑफ 8u माइनस 4t डिवाइड बाई 4 होगा तो 8 होगा, इसका भी लिमिट 0 टू t। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट you will get the final answer, so finally you can write e to the power minus 4t 1/2 t cos 4t और यहाँ पे आप एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, सो दैट इज cos ऑफ 4t एंड माइनस साइन ऑफ माइनस 4t, सॉरी नॉट cos, दैट इज साइन डिवाइड बाई 8। वो अंदर का माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो फाइनली ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 ऑफ साइन ऑफ 4t बाई 8। बाकी रेस्ट पार्ट एज इट इज e to the power minus 4t divided by 2 into t cos 2t. This is your complete answer. Understood?
Student, any doubt? No, sir. One question related to that. That is s plus 2 s square plus 2 divide by s raised to 4 plus 10s square plus 9 like that. ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये तो इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बट उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये 10s स्क्वायर है, तो अगले स्टेप में आप लिख दोगे s प्लस 5 द होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते। बट वापस सेम प्रॉब्लम होगा कि नीचे आपका s स्क्वायर प्लस 5 आ गया और ऊपर s स्क्वायर प्लस 2 है, तो शिफ्टिंग अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसमें शिफ्टिंग तभी अप्लाई होगा जब सिर्फ s प्लस 5 रहता है, इसमें हम लोग शिफ्टिंग अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे सिनेरियो में हम लोग को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट? तो इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए आप इसको क्वाड्रेटिक बना लो, यानी s स्क्वायर की जगह आप x पुट कर लो, तो आपको क्वाड्रेटिक जैसा नजर आएगा। एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, बाद में रिसब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब ये डिनोमिनेटर आप देख रहे हो तो फैक्टर हो सकता है। डिनोमिनेटर में जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 9x प्लस 9, और फाइनली इधर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, फिर 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, फिर फाइनली x प्लस 1 कॉमन लेंगे, देन वी विल गेट द x प्लस 9। तो फाइनली ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरीके से हो गया, दैट इज L इनवर्स ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 और x प्लस 9। लेकिन आपका क्वेश्चन तो s में था, तो आप क्या कर लेंगे, वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जहां x लिखा है उसकी जगह s स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन वापस से s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1 एंड s स्क्वायर प्लस 9 ऐसा हो गया। बोलो यहाँ तक कंफर्टेबल है? मुझसे एक बार दिखा देते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। फिर आपने थोड़ी देर मैंने बताया कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर आप बनाने जाओगे तो s स्क्वायर प्लस 5 हो जा रहा था, इसमें शिफ्टिंग नहीं लगा सकते क्योंकि x प्लस 5 रहता तो शिफ्टिंग लगा था, s स्क्वायर प्लस 5 रहेगा तो शिफ्टिंग नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने से पहले मैंने s स्क्वायर की जगह x पुट कर लिया सो दैट ये क्वाड्रेटिक बन जाए, और क्वाड्रेटिक आप इजिली फैक्टर निकाल सको। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना के फिर फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज होने के बाद वापस x की जगह s स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन s में ला दिया। इस तरह से फैक्टर वाला काम हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, आइदर यू कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन और कन्वोल्यूशन। बट क्वेश्चन में अगर हम लोग लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन, तो कन्वोल्यूशन ही करना पड़ेगा। बट मैं दोनों मेथड से इसको सिखाता हूँ। फर्स्ट मेथड कन्वोल्यूशन एंड सेकंड पार्शियल। कन्वोल्यूशन निकाल डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि दो अलग अलग फैक्टर बनेगा ही नहीं। तो इसको कन्वोल्यूशन से अगर करना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस स्क्वायर प्लस 9 पहला, और एल इनवर्स ऑफ 2 को बाहर ले सकते हैं तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। दो अलग अलग क्वेश्चन बने। सो हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, मैंने दो बार कर टू से बचने का भी एक तरीका है, पहले इसमें से एक को सॉल्व करो। तो आप उसको सॉल्व करो जिसमें एस नहीं है, इसको पहले सॉल्व करो, फिर इसी के आंसर पे हम लोग इसका आंसर निकालें। तो आपको एक ही बार कन्वर्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं उसमें से पहला वाला जो टर्म है यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, इस पे पहले कन्वर्शन अप्लाई करें, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर आप पहले इनवर्स निकालोगे तो साइन टी, इसका आंसर निकालोगे तो साइन 3t/3। फिर जैसा कि बताया कि एक में u पुट करना है तो साइन u, दूसरे में हो जाएगा साइन ऑफ 3t माइनस 3u डिवाइड बाई 3, और इसको इधर ही इंटू करके 0 to t में इंटीग्रेट कर देना ही कन्वोल्यूशन होता है। आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स?
हाँ सर। Okay. So now apply sin A sin B formula. So first of all I write the sin A sin B formula. Sin A into sin B, this is equal to 1 by 2 cos of A minus B इसमें पहले आता है और cos of A plus B इसमें बाद में आता है, ये ध्यान में रखना है। तो 1 by 2 into 1 by 3, ये 3 जो क्वेश्चन में है ऑलरेडी, 0 to t cos of u minus 3t plus 3u सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये a है और ये b है, माइनस कॉस ऑफ दोनों का एडिशन u plus 3t minus 3u, ये हो गया 1 by 6 0 to t that is cos of 2u minus 3t, right, and minus cos of 3t minus 2u du, दोनों में u का टर्म है तो दोनों इंटीग्रेट होगा। सो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ 2u minus 3t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u दैट इज 2, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ 3t minus 2u divided by coefficient of u that is minus 2. Now substitute the limit, that is upper limit and lower limit. So first of all you have to put 2 common ले सकते हैं क्योंकि by mistake दोनों में something is wrong ना, I think so, because this is 3u plus u that is 4u and here 3u minus u plus u minus 3 that is minus 2u, this is correct. So 1 by 6 substitute the upper limit and lower limit in first one, पहले इसके अंदर पुट करो, तो साइन ऑफ t पुट करेंगे तो दैट इज 4t माइनस 3t, तो ये क्या बन जाएगा 4t माइनस 3t दैट इज t, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे इसी के अंदर तो माइनस साइन 3t डिवाइड बाई 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें भी अपर एंड लोअर एक साथ पुट करो, इसके अंदर अपर एंड लोअर दोनों पुट कर रहे हैं, अपर पुट करेंगे तो दैट इज साइन ऑफ t एंड लोअर पुट करेंगे तो साइन ऑफ t, राइट। एक मिनट, अपर पुट किया t की u की जगह t तो 2t एंड 3t तो t, जीरो पुट करेंगे तो 3t। ओके सो नाउ 4 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 साइन t माइनस माइनस प्लस साइन 3t, यहाँ पे 4 नहीं था 2 था इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन t माइनस 2 साइन 3t। आफ्टर दैट ये साइन t और साइन t दैट इज 3 साइन t एंड माइनस साइन 3t, इसका और इसका एड रिजल्टेंट, सो दैट इज 1 by 20। फिर भी इस मेथड को हम लोग सेकंड मेथड से भी चेक करेंगे, नहीं अभी तो ये इतना ही हुआ है, तो मैंने सॉल्व किया L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, जरा ध्यान से देखना, और इसका आंसर हमने निकाला 1 अपॉन 24 3 साइन t माइनस साइन 3t। फिर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था कि लैप्लास इनवर्स ऑफ अगर फाई ऑफ एस है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास का याद दिला रहा हूँ, फाई ऑफ एस है, और अगर इसके अंदर आप डिफरेंशिएट करते हैं क्वेश्चन को तो आंसर आपका एस इंटू फाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो आता है। इसी चीज को अगर मैं उल्टा लिखता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, अगर एल इनवर्स ऑफ एस इंटू फाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। अगर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है इन केस, वो चेक करेंगे हम लोग, तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से नजर आएगा, दैट इज एस इंटू फाई ऑफ एस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअली, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ देखो कैसे, कि सपोज दैट एल इनवर्स ऑफ सिर्फ फाई ऑफ एस है, इसको ध्यान देना एकदम अच्छे से ध्यान देना, मैंने ये दोनों टर्म पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इसका आंसर एफ ऑफ टी है, अगर आप इसमें एस से मल्टीप्लाई करते हो, क्वेश्चन में ध्यान देना भैया, दैट इज इंपॉर्टेंट, इफ एंड देन, अगर आप एस से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आंसर है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। और एंड और एक चीज बता देता हूँ, अगर आप इसको डिवाइड करते हो
यहाँ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो आंसर को इंटीग्रेट कर देंगे। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, एक मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, ये आज मैंने बताया। तो अगर आप क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बेस करते हो तो आंसर को डिफरेंशिएट करना है, ये मल्टीप्लाई बेस मतलब डेरिवेटिव, ये दोनों साथ में आए, और डिवाइड बेस की वजह से यहाँ इंटीग्रेशन आए, तो ये ध्यान में रखना। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो, आपका जो क्वेश्चन है 1/s² + 1 इंटू s² + 9, जिसका कुछ आंसर हमने निकाला, दैट इज 1/24। इधर बाहर क्या है देख लेते हैं, 3 sin t - sin 3t, 3 sin t - sin 3t, ये मैंने निकाला। मैं चाहता हूं कि इसमें s से मल्टीप्लाई करो, तो अगर मैं s से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसको अगर आप जैसे आपने s से मल्टीप्लाई किया तो आपको फटक से इधर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक कंफर्टेबल है सब लोग? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो इमीडिएट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, वी विल गेट 3 cos t - 3 cos 3t, तो ये इसका ये सिंस और ये देयरफॉर ये s/s² + 1 इंटू s² +, ये आंसर। अगर मैं और एक बार अप्लाई करूं, अगेन मल्टीप्लाई बाई s, देन क्या होगा, इसके साथ हमने s के मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी s था, तो अभी अभी जो आपने आंसर निकाला है ये 9 है, याद रखो। अभी ये मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, अभी जो आपने आंसर निकाला है इसमें वापस डिवाइड dt लग जाएगा, ये इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें। तो 1/24 को बाहर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/24, सो दैट इज 3 sin t माइनस के साथ एंड +9 sin 3t, बिकॉज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ऑलरेडी मिडिल साइन माइनस था, और वो 3 जो 3t है वो 3 बाहर निकल के 9 बन गया। सो दिस इज द आंसर। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले अगेन मैंने पहले इसका आंसर निकाला 1/s² + 1 इंटू s² + 9, इसका आंसर मैंने निकाल के रखा था 1/24 - 3 sin t, सॉरी sin t प्लस नहीं था, -3 sin t। एक बार और चेक करेंगे क्या सिनारियो। हाँ, 3 sin t - sin 3t, 3 मैंने गलत जगह लिखा है, ये 3 यहाँ पे था न कि यहाँ पे। और फिर अभी अभी ये वाला आंसर डबल मल्टीप्लाई बाई s करके जो निकाला, जो कि बाद में s² बन जाएगा। तो अभी इसका जो आंसर निकालो आपके सामने ही है, दैट इज 1/24 - 3 sin t + 9 sin 3t। तो ये चीज मैंने निकाल कर रखा। अब हम लोग आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, अगर आपको याद हो तो, s² + 2 डिवाइड बाई s² + 1 s² + 9। फिर इस क्वेश्चन को आपने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट लिखा s² s² + 1 and s² + 9 plus 2 times of L inverse of 1/s² + 1 into 1/s² + 9। ऐसे दो पार्ट में आपने क्वेश्चन को लिखा। ये क्वेश्चन था ओरिजिनली, फिर आपने इसको स्प्लिट करके लिखा, s² के लिए लिखा, 2 के लिए लिखा। सो अब ये दोनों पार्ट का हमने आंसर कैलकुलेट, तो ये जो पार्ट है दिस वन, इसका मैंने कॉन्वोल्यूशन से आंसर कैलकुलेट, बाय कॉन्वोल्यूशन वी विल गेट, क्या आंसर मिला था, तो 1/24 3 sin t
माइनस साइन 3t। फिर इसी आंसर में इस क्वेश्चन में जब एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, और 2 बार डिफरेंशिएट करके क्या आया, सो दैट इज पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 3 cos t हुआ, दूसरी बार किया तो 3 sin t। इसका पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 3 cos 3t हुआ, और अगली बार डिफरेंशिएट किया तो 3 × 3 9, वापस cos का साइन बन के फाइनली प्लस 9 sin 3t हुआ। ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, आप इतना दिमाग मत लगाओ, ये दोनों आंसर मैंने लिखे। ये ओरिजिनली ये सॉल्व करके लाए और इसके बेसिस पे मैंने ये वाला निकाला बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करके जो दिखा। सो फाइनली जब आप यहाँ देख रहे हो इसमें 1/24 को कॉमन लेके 3 sin t प्लस 9 sin 3t प्लस 2 नहीं 6 sin t माइनस 2 sin 3t। फिर लास्ट में जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट विल बी 9 - 2, ये -3 और ये 6 दैट इज 3 sin t। ये दोनों को साथ में सॉल्व किया और इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे सो दैट इज 7 sin 3t। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग पार्शियल से सॉल्व कर रहे होते तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता ही नहीं। क्वेश्चन क्या था, L इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 एंड s स्क्वायर प्लस 9। इसमें डायरेक्टली हम लोग a अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड b अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 लिख देते थे, और फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होके फाइनली a sin t बन जाता था और b sin 3t/3 बन जाता था। एक लाइन में ही आंसर आ जाता, और फिर a और b का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो a निकालने के लिए आप न्यूमरेटर s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 9 लिखते और s स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। b निकालने के लिए पूरा एक्सप्रेशन में से x स्क्वायर प्लस 9 हटा के s स्क्वायर की जगह -9 पुट करेंगे। ये सारी चीजें पहले बता दिया हूँ। तो ये हो गया -1 + 2 डिवाइड बाय -1 + 9। तो आंसर इज द 1/8 and here you can write -9 + 2 divided by -9 + 1, then answer will be -7/9 8। अब ये दोनों वैल्यू लाके अगर उसके हम लोग पुट करते हैं, ये जो हमने आंसर निकाल के रखा है, फाइनली वी विल गेट a का वैल्यू कितना निकला था, दैट इज 1/8 sin t प्लस 7/8 sin 3t। सो दिस इज फुल एंड फाइनल आंसर। फर्स्ट मेथड से क्या आंसर है, दोनों सेम आना चाहिए। 8 नहीं है, 24 है। तो सोचना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस मेथड से जो हमने सॉल्व किया अभी लेटेस्ट 3 sin t, कहीं कुछ स्मॉल मिस्टेक हुआ है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, ज्यादा नहीं, बिकॉज आप 24 को अगर आप अंदर भेजते हो तो 3/24 दैट इज 1/8 होगा, तो sin t/8, बट यहाँ 7/24 हो जा रहा है, जबकि यहाँ 7/8 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ तो एक स्मॉल स्केल पे मिस्टेक हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कुछ क्या मिस्टेक हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो खैर वो मैं रेक्टिफाई अभी करता हूँ, बट अभी करके कोई फायदा नहीं, बहुत ही स्मॉल करेक्शन है जो मैं कर दूंगा, डोंट वरी, बिकॉज काफी कुछ उसमें एक साथ होते गया तो हम लोग कहीं ना कहीं पेज, प्रीवियस पेज पे क्या लिखा था वो कुछ गलत अगले पेज पे नोट डाउन किया रहेगा, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। बट ये मेथड से आपने ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व किया, आप ये देखो s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 प्लस s स्क्वायर प्लस 9, अप्लाई द पार्शियल एंड देन वी विल गेट लाइक दिस। फिर a और b का वैल्यू निकाला, तो a का वैल्यू के लिए s स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 9, s स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, -1 + 2 इज 1 एंड -9 -1 + 9 इज 8, दैट इज करेक्ट। एंड सेकंड वाले में हमने पुट किया तो दैट विल बी s स्क्वायर की जगह -9 + 2 यानी 7, -7 डिवाइड बाय -8 तो 7/8। तो स्मॉल करेक्शन इसमें कहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं, पूरा गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन
चेक कर लेते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, और इसी बहाने आपको रिकॉल भी मैं कर देता हूँ, मैं हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ, तो पूरा क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ करेक्शन आपको जो रहेगा वो दिख भी जाएगा, एज वेल एज आपको पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले ये है क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन ये था, बट इसको हमने कन्वर्ट करके एस स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड एस स्क्वायर प्लस 10 लाइक दैट को हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, और यहाँ से हमने मेथड स्टार्ट। अब इस मेथड में पहले हमने कन्वर्शन यूज किया, तो मैंने दो अलग अलग फैक्टर बनाए, और पहला एस स्क्वायर प्लस 1 ऐसा करके लिखा, और मतलब वो न्यूमरेटर को एस स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर और 2 के नीचे डिनोमिनेटर दो अलग अलग बनाए। फिर ये वाले टर्म को मैंने कन्वोल्यूशन अप्लाई किया, तो एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9 दोनों को हम लोगों ने जब इनवर्स इंडिविजुअली इनवर्स लिया, तो इसका इनवर्स साइन टी है और इसका साइन 3t/3 है। एक में यू पुट किया, एक में टी माइनस यू पुट किया, तो 3t-3 हो गया। फिर इसमें साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज किया, तो 1/2 लिखा यहाँ पर, और ये 1/3 का भी यहाँ 3 लिखा, एंड देन साइन ए साइन बी का फॉर्मूला भी यहाँ लिख के रखा है, तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। सो फाइनली वी विल गेट, दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u माइनस 3t प्लस 3u हो जाएगा, तो ये दिस प्लस दिस 4 हो जाएगा, जो अगले में 4 लिखना है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे ऐड कर रहे हैं, तो एज इट इज कॉपी किया है, तो u दिस लाइक दैट। तो फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी मैं इस स्टेप पे पहुंच गया हूँ, जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ वहां तक पहुंचा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको देख रहे हो कि ये 4u हो गया, और यहाँ u और 3u सब्ट्रैक्ट करके माइनस 2u बचा, तो ये भी करेक्ट है। फिर इस दोनों के टर्म में u है, तो इंटीग्रेट किया, पहले वाला इंटीग्रेट cos का साइन, और u के बाजू वाला जो 4 था वो डिवीजन में आया, इधर cos का साइन और u के बाजू माइनस टू माइनस डिवाइड किया, वो भी करेक्ट है। आफ्टर दैट हमने sorry, जस्ट वेट, यहाँ हाईलाइट तक पहुंचे हैं। आफ्टर दैट हमने अपर एंड लोअर लिमिट पुट किया, यहाँ पे प्रॉपर्ली देखते हैं, तो 4u में मैंने यहाँ पर u की जगह t पुट किया, तो 4t माइनस 3t दैट विल बी t, करेक्ट है। और जब इधर 0 पुट किया तो माइनस 3t हुआ, ये भी करेक्ट है। चलो दूसरे वाले में आते हैं। इसके अंदर जब 3t u की जगह हमने u पुट किया, t पुट किया, तो 3t माइनस 2t दैट इज t, ये भी करेक्ट है। और जिसमें मतलब लोअर लिमिट पुट किया u की जगह 0, तो साइन 3t, ये भी करेक्ट है। और ये माइनस दोनों मिला के यहाँ प्लस हुआ, ये भी करेक्ट है। सो इस बार हम लोगों ने 4 को कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लिया, बाहर ऑलरेडी 1/6 अवेलेबल था, तो 6 इंटू 424 हुआ यहाँ पर। अंदर मैंने साइन टी और ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, वो भी करेक्ट है। और फिर ये तो ऑलरेडी प्लस हो गया, तो साइन टी माइनस साइन 3t 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ 2 है और हमने कॉमन लिया है 4, तो यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है अलग से, वो जो मैंने किया। तो 2 sin t माइनस 2 sin 3t, इस sin t एंड 2 sin t 3 sin t लिखा, एंड sin 3t एंड माइनस 2 sin 3t दैट इज माइनस sin 3t, तो यहाँ तक करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएट करने वाला प्रॉपर्टी लिखा, तो मैंने पहले प्रॉपर्टी समझाया, यहाँ पे ये सब उतना मत देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट कि अगर कोई क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिफरेंशिएट, ये s के वजह से, मल्टीप्लाई वाले s की वजह से डेरिवेटिव आता है, और ये डिवाइड वाले s की वजह से ये इंटीग्रेशन आता है, ये ध्यान में रखना। जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे, और जितनी बार डिवाइड करोगे उतनी बार इंटीग्रेट करते जाएंगे। हाँ, बट राइट, सो ये पहली बार हमने लिखा और इसमें मल्टीप्लाई किया, तो पहले ये क्वेश्चन लिखा एज इट इज, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो इस वजह से यहाँ डिफरेंशिएट किया, फिर वापस इसका आंसर यहाँ पे निकाल दिया। बट आपको मैंने एक बताया था कि एक एफ ऑफ 0 करके भी टर्म होता है, एफ ऑफ 0 भी एक टर्म होता है, तो वो टर्म के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए था, सोचा भी हमने। एफ ऑफ 0 अगर 0 है तो ही आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो एफ ऑफ 0 है, बिकॉज जो फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन ना, इसमें आप t की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आंसर देगा, आपको 0 देगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने ये आंसर निकालने के बाद, ये जब हमने आंसर निकाला, तो ये आंसर जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इस टाइम पे भी ये पूरा हाईलाइटेड पोर्शन t इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए,
तो ये भी हो रहा है, यानी यहाँ भी हम लोग वापस अगर एस से मल्टीप्लाई करने वाला फंडा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एफ ऑफ जीरो यहाँ पर भी जीरो ही है, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई करेक्शन नहीं। अब ये 3 कॉमन लेके, नहीं हमने 3 कॉमन लिया ही नहीं, वो एज इट इज रख दी, वापस डिफरेंशिएट किया तो ये कॉस का, ये अगली बार डेरिवेटिव जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अगली बार जो ऐसे मल्टीप्लाई किया और आगे डिफरेंशिएट, इसको जो दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस 3 कॉस का, नहीं अभी तो सिर्फ डिफरेंशिएशन लिखा ही है, अगले स्टेप में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, वो भी करेक्ट है, एंड कॉस 3t का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t इंटू अगेन 3, तो 339 और माइनस प्लस हो गया, ये भी करेक्ट है। फिर दोनों आंसर निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड करेंगे जैसे कि अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा, फर्स्ट पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये बराबर लिखा है कि नहीं वो चेक करते हैं, so that is 1/24 3 sin t minus sin 3t, वो भी करेक्ट लिखा है। और दूसरा आफ्टर डबल डिफरेंशिएशन आंसर आपका आया 3 माइनस sin, ये डबल डेरिवेटिव का आंसर वो भी करेक्ट है। 24 कॉमन ले लिया तो अंदर ये माइनस साइन 3t और 6 sin 3t, तो ये 3 sin t हुआ, ये भी करेक्ट है। 9 sin 3t एंड माइनस 2 sin 3t, तो फाइनली दिस इज 7, ये करेक्ट। So this is the final answer, sin t upon 8 and 7 upon 24. But when you apply the partial fraction method, then you can write a upon s square plus 1 and b upon s square plus 9. After that, find the value of a and b, क्योंकि तो इनवर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे s square plus 2, s square plus 9 and put s square equal to minus 1. Finally answer is 1/8. This is also correct. And minus 9 put कर रहे हैं तो 7/8. This is also correct. So what is the minor mistake is there? You are not able to find a mistake. So I will. सर ये स्लाइड जरा ऊपर शिफ्ट करना दो Hmm. सर, वो कॉन्वोल्यूशन मेथड पे। Yes, yes, yes. सर यहाँ पे यू टर्म लिया ना हम लोग ने, ये Just wait, wait. हाँ सॉरी, एक मिनट, कॉन्वोल्यूशन पे शिफ्ट कर, हाँ सर। एक मिनट रुको, आने दो, डिस्प्ले पे आने दो, यहाँ से लेते हैं, यस फ्रॉम हियर ना, सर यू को डेरिवेट और वी को इंटीग्रेट करते हैं ना, एक मिनट, ये लाइन बराबर है ना यहाँ, और हाँ ये तो बराबर है सर। बट यू भी थोड़ी अप्लाई, मैंने यू इंटू वी रूल अप्लाई नहीं किया ना इधर, अच्छा इधर हाँ, मैंने साइन ए बी अप्लाई किया है, बराबर। हाँ, बिकॉज साइन यू साइन ए और इंटू साइन साइन बी। 3t माइनस यू, इसमें साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज किया ट्रू वाला, तो cos a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी बन गया, 1/2 आया। सो फाइनली u माइनस साइन 3t प्लस ये सब हुआ, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज हुआ, u इंटू वी यूज नहीं हुआ, वो नहीं कर सकते ना, बिकॉज u इंटू वी तभी यूज करेंगे जब u का डेरिवेटिव फ्यूचर में जाके, हाँ बराबर। साइन u का डेरिवेटिव कभी जीरो होगा ही नहीं, तो फिर u नहीं। तो एक स्मॉल स्केल पे मिस्टेक है, बट जो अभी मिल नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सर्च करके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, या फिर आप भी सर्च करो, बिकॉज बाकी सब परफेक्ट है, हम लोगों ने हर एक एंगल से क्रॉस चेक किया है, तो यहाँ जहाँ मिस्टेक हुआ है इट्स ओके, इग्नोर इट। सो आई थिंक सो आपको ये समझा, और कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड हमने लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड अभी जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत ही सिंपल मेथड है, सो दैट इज योर लास्ट मेथड, मेथड 4। डिफरेंशिएशन प्रोपोज। सो जैसे कि मैंने एलिमेंट्स ऑफ ऑलरेडी मैंने ये बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, कि कोई फंक्शन आंसर है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, जो क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड है, tan इनवर्स से रिलेटेड है एंड cot इनवर्स से रिलेटेड है, तो आप अगले स्टेप में -1/t लिख के अंदर डिफरेंशिएट कर देंगे, बस यही है प्रॉपर्टी।
सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा, और इसको प्रूफ मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1, एल इनवर्स ऑफ, ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हम लोगों ने। सपोज दैट tan इनवर्स ऑफ एस लिख। सो मैंने बताया कि अगले स्टेप में आपको बाहर 1/t लिख देना है, -1/t, और अंदर डिफरेंशिएट करना एस के रिस्पेक्ट। मतलब इसकी वजह से ये चीज आया है। अगर आप बाहर ये लिखते हो तो अंदर आप ये कर सकते हो, एज ये प्रॉपर्टी का ये एप्लीकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसको डिफरेंशिएट करो। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे क्या आंसर आएगा बोलो? 1/s² + 1, बिकॉज tan इनवर्स का ये डेरिवेटिव होता है। और ये अगले स्टेप में एक फॉर्मूला बन जाता है, मतलब ऑलरेडी फॉर्मूला बन गया, sin t / t। दिस इज फाइनल आंसर, दैट्स इट। तो काफी सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, और एक दो सिखा दो। सपोज दैट मैंने ले लिया tan इनवर्स ऑफ s - 2/3। पहले तो इसमें आप शिफ्टिंग अप्लाई करो, बिना शिफ्टिंग के भी कर सकते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो शिफ्टिंग करोगे तो ये जो s - 2 है उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, s लिख देंगे, लेकिन बदले में बाहर -2t लिखना पड़ेगा, e⁻²। शिफ्टिंग हो गया। अब आप डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो उसके अकॉर्डिंग e⁻²t डिवाइड बाय -t, l इनवर्स ऑफ, बाहर -1/t लिखा मतलब अंदर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए अलाउड है। बाहर 1/t लिखा ना तो किसी भी क्वेश्चन को अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन आप tan इनवर्स, cot इनवर्स एंड log वाले क्वेश्चन में ऐसा करना है। सो e⁻²t डिवाइड बाय -t, l इनवर्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव बोलो, 1/1 + s/3 the complete whole square into further derivative of this term, that is 1/3. So after that simplify this expression so that you can find the Laplace inverse of this term. So in denominator you can write s² + 9 divided by 3 का स्क्वायर 9 and 1/3, इधर ऑलरेडी 3 कट गया, इधर 3 बचेगा, ऊपर चला जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में 3e⁻²t डिवाइड बाय t माइनस l इनवर्स ऑफ 1/s² + 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज योर sin 3t। So -3e⁻²t divided by t, and this is the sin 3t divided by t. 3 cancel. So this is your final answer. तो होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया। तो ये काफी इजी है, इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में भी 2-3 सम सॉल्व किए थे, आज भी कर लिया। एक लास्ट सम और फिर वाइंड अप। L इनवर्स ऑफ log of s into s plus 2 divided by s square plus 4। इसमें log का प्रॉपर्टी यूज करो, बिकॉज log m into n is nothing but log m plus log n, एंड अगर डिवीजन है तो फिर यू कैन ऑलरेडी नो दैट इज m minus n, राइट। ये प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं क्या होता है। तो दैट इज log of s plus log of s plus 2 गिव यू मल्टीप्लाई में, एंड माइनस log of s square plus 4 बिकॉज वो डिवाइडेड। तो ये log के मैंने प्रॉपर्टी की यूज करके स्प्लिट कर दिया। आगे आपको क्या करना है, वही सिंपल टेक्निक, बाहर -1/t लगाओ और अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स इट। तो d by ds ऑफ होल टर्म यानी कि log s प्लस ये ब्रैकेट में है, दैट इज log of s plus 2 एंड दैट इज log of s square plus 4। अभी 1 by 1 सबका डेरिवेटिव बताओ। log s का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/s, इसका भी डेरिवेटिव 1/s plus 2, इसका डेरिवेटिव 1/s square plus 4, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म दैट इज 2s according to chain rule। तो then finally we will get L inverse। Then tell me 1 by 1 answer। फर्स्ट टर्म का आंसर 1, सेकेंड टर्म का आंसर e⁻²t, एंड थर्ड टर्म का आंसर 2 इज कॉमन तो 2 को बाहर ले लेंगे, एंड दैट इज cos of 2t। होप सो कि आपको ये समझा पूरा। एनी डाउट? हाँ सर। नो सर। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इज ऑड, 4 क्वेश्चन इज इवन, इवन पे स्टॉप करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको 1 by 1 सीखने को मिलेगी। एक जो अगला क्वेश्चन है वो दैट इज
tan inverse of 2 by s plus 2। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस बताने पड़े। पहला क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, L inverse of 1 upon s raised to 4 plus 4। ये आपका पहला छोटा क्वेश्चन। एक सेकेंड है। So this is your first small question। पहले ये क्वेश्चन सिखाता हूँ। क्योंकि पार्शियल का एक सम था, एक टेक्निक था 1 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 2 लाइक दैट। तो मैंने आपको लिखने सिखाया था कि 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2 1 माइनस 2 लिख सकते हैं, बट आप d2 माइनस d1 मस्ट बी इक्वल टू न्यूमरेटर। याद आ रहा है? ये टेक्निक अभी भी पेंडिंग में है। तो इसके ऊपर एक सम मैं सिखाता हूँ आपको। समझो ऐसा है s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट है s स्क्वायर प्लस 2s एंड सॉरी माइनस 2s। सो इसको एज ए डिनोमिनेटर 1 पकड़ता हूँ। लेट डिनोमिनेटर 1 इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर 2 इक्वल टू s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 4s आएगा कि नहीं? स्टूडेंट ये समझा? जरा अच्छे से समझ के लो आप लोग। दोनों को डिफरेंस, ये डिनोमिनेटर 1 एंड 2 का डिफरेंस लिया तो 4s आया। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी न्यूमरेटर में 4s लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन को मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ बोलो? L इनवर्स ऑफ व्हाट? ये फॉर्मूला यूज करो तो क्या लिख सकते हैं? 1 upon s square plus 1 2s अपॉन plus s 4. स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4। क्योंकि ये टेक्निक इसमें एप्लीकेबल है। अब इसके आगे सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील बिकॉज ऑलरेडी नो दिस इज द मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, then s plus 1 the whole square minus 1 का square plus 4। Here also you can write s square sorry s minus 1 the whole square minus 1 का square plus 4। दोनों में शिफ्टिंग लगेगा। इसका शिफ्टिंग अलग होगा टू द पावर माइनस टी 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3। इसमें शिफ्टिंग टू द पावर प्लस टी L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर। अंडरस्टूड? दोनों में शिफ्टिंग अलग हुआ ना। इसमें s प्लस 1 शिफ्ट हुआ, वहाँ s माइनस 1 शिफ्ट हुआ, इसलिए एक में e टू माइनस टी आया, दूसरा प्लस टी है, बट अंदर का फंक्शन सेम है इसलिए आंसर तो सेम आएगा। ये लिखेंगे साइन टी, साइन टी नहीं आएगा, ये साइन रूट 3t आएगा, राइट? और इसका भी साइन रूट 3t आएगा। अब दोनों में साइन रूट 3t कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली e रेज टू माइनस टी e रेज टू प्लस टी इंटू साइन रूट 3t। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं एक्स्ट्रा तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक टी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। क्या क्वेश्चन था देख लो, यहाँ से क्वेश्चन जिसमें मैंने ये पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट टेक्निक जो पेंडिंग रह गया वो मैंने अप्लाई करा। तो ये दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2, दोनों ब्रैकेट को d1 d2 नाम देके सब्ट्रैक्ट करके अगर ये 4s आया जो क्वेश्चन ऑलरेडी 4s न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये हम लोग क्वेश्चन में कंटिन्यू कर लिया। तो डायरेक्टली 1 अपॉन d1 माइनस d2 लिख के दो अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए, दोनों में शिफ्टिंग मार दिया और पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में फिर दोनों में शिफ्टिंग किया, अलग अलग शिफ्टिंग भी हुआ e टू द पावर माइनस टी उधर e रेज टू प्लस टी
एंड फिर रेस्ट पार्ट का इनवर्स निकाला तो फाइनली ये आ गया, और फिर कॉमन लेके थोड़ा फाइनली सिंप्लीफाई कर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया जो काफी इंटरेस्टिंग। ये दूसरा छोटा सा क्वेश्चन, इसको मैं सिखाता हूँ बिकॉज ये S/4 है और +4 है, इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बना सकते, सॉरी फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। कैसे? अगर मैं पूछूं कि S² प्लस 2 होल स्क्वायर लिखना हो तो क्या लिखोगे? दैट इज S/4 प्लस 4S² एंड +4, ये करेक्ट है स्टूडेंट? इसमें कहीं कोई डाउट? नो सर। अगर मैं इधर S² प्लस 4 लिखता हूं तो इसको मैं इधर भेज सकता हूं। बोलो ये करेक्ट है? ये दोनों लाइन समझा कि नहीं? इसके बेस पे ये आया, बट ये दोनों आपको समझ तो गया रहेगा। तो मैं S² 4 की जगह पे क्या ऐसे लिख सकता हूं? बोलो स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई। ये समझा कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्लियर हुआ? फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन जो लिखा, तो मैं अंदर डिनोमिनेटर में S/(s² + 2 द होल स्क्वायर माइनस 4S² लिखा, तो ये चलेगा? इसमें आप लोग कंफर्टेबल है? प्लीज रिप्लाई। यस सर, राइट है। यस। अगर मैं ये 4S को 2S लिख देता हूं, S² + 2 2S लिख के होल स्क्वायर करता हूं, तो ये भी करेक्ट है। सो दैट आप आगे जाके A² - B² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। A - B, A + B, whatever, A + B, A - B, both are correct। सो आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूं मैं? इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखना है, आप बता सकते हो? यस स्टूडेंट, टेल मी। आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, प्लीज रिप्लाई। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। आप डिनोमिनेटर में क्या लिखना है बताओ। ये A² और ये S² + 2S + 2 into S² - 2S + 2। S² + 2 + 2S एंड दूसरे ब्रैकेट में S² + 2 - 2S। ये समझा सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें मैं एक एक्स्ट्रा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड करना रह गया, और फिर ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो गया जिसको मैं पहले ही सॉल्व कर चुका। देखो ये समझा? बोलो। तो मैंने दो छोटे छोटे क्वेश्चन सिखाए और दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिंक कर दिया, तो फाइनली ये मतलब ये बड़े ये वाले क्वेश्चन का आंसर है। यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग स्टूडेंट्स? इन डाउट? हाँ सर। नो सर। अब देखो कि ये जो क्वेश्चन मेरे पास डबल क्वेश्चन मार्क पेंडिंग है, उसको मैं कैसे इस क्वेश्चन से रिलेट करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। सिर्फ मैं रिलेट करके दिखाता हूं कि मैंने कैसे रिलेट किया है, मतलब कैसे सॉल्व किया है। थोड़ा हैंग, आज कंप्यूटर काफी हैंग हो रहा है मेरा। यस यहाँ। बहुत ही डिले हो रहा है इरेज करने में। ओके सो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कंटिन्यू कर रहा हूँ देखो। पहले तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर -1/t और अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। यही है ना अपना लॉजिक? चलो इसका डेरिवेटिव बताओ। -1/t
tell me the derivative. So that is 1 plus s by 2 whole square. फिर s by 2 नहीं है, 2 by s है, 2 by s square है basically. Yes, so that is 2 by s square. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 upon s square. And further derivative of this term according to chain rule, तो minus 2 upon 1 upon something, मतलब that is s raised to minus 2. इसको s raised to minus 2 करोगे, इसका डेरिवेटिव तो -3 minus 2 s raised to -3 लिख दोगे, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया -2s. तो ये हो गया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. अब अगले स्टेप में जरा मुझे बताओ, ये 2 और 2 4 हो गया, बाहर का एक माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा. तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4, मतलब वो तो रहने दो, 1 अपॉन टी एल इनवर्स ऑफ माइनस माइनस प्लस करके 4 s क्यूब डिवाइड बाई कांस्टेंट और डिनोमिनेटर, तो दैट इज s रेज टू 4 प्लस 4, s रेज टू 4 प्लस 4 एंड होल डिवाइड बाई s रेज टू 4. अब ये s रेज टू 4 और ये s रेज टू -3 है, यानी कि ये s रेज टू 4 ऊपर जाएगा, s रेज टू +4 बनेगा पावर में. तो फाइनली वी विल गेट, यस क्या मिलेगा, ये 4s अपॉन s रेज टू 4 + 4, बाहर एक 1/t रहेगा. तो देखा जाए तो ये वही क्वेश्चन का एक छोटा वर्जन. तो अब जाके क्वेश्चन पूरा लिंक में आ गया. क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/s², जिसको हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज किया. तो फाइनली ये क्वेश्चन बन गया. और ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस इसमें 4 आपको कंटिन्यू रखते जाना है. तो अलग से मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने का जो सेंटेंस पीछे बोला था वो करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 4s वहां पे पहले से ही है. और फिर आगे ये इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया और इसका ये आंसर आ गया और ये. बट एक डिवाइड बाई टी स्टार्ट से ही लिखना रह गया. यहाँ 1/t है तो यहाँ भी डिवाइड बाई टी. तो मैंने कैसे क्वेश्चन को लिंक किया आपने देखा ना, डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी, ऐसे करके हर एक स्टेप में डिवाइड बाई टी लिखते जाएंगे और फिर फाइनली आंसर में. दिस इज द फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन s². आंसर है 2/t sin hyperbolic of t and sin hyperbolic of, sorry, sin root 3. Okay, so finally done. Laplace inverse is completed. So this is your second module जो हमने कर लिया. So that's all for today. We will meet in next lecture with next module, I mean complex variable.